So today we are going to study this limit section, limit chapter, in which we have studied the basic limit part, how to calculate a limit, what is LHL, what is RHL, what is value of limit. If all three are equal to each other, so we can say that this your limit exists. And next we have studied in our yesterday's class that what is intermediate form is, indeterminate form is, and what are the different forms, what is the meaning of indeterminacy, and for the removal of indeterminacy we have started studying some chapters, some methods which covers how to solve a limit which includes indeterminacy. So in that particular section we have studied factorization method. So there are some 5-6 methods more in how to remove indeterminacy. In that section there are 5-6 methods more. So let me start with this rationalization concept. So what a rationalization concept is, in your class 8th, 9th, 10th you have gone through this concept that rationalization, how to deal with rationalization, and what can we do to rationalize a quantity. So let me take an example from here and then we'll solve using rationalization. So rationalization can be done in numerator as well as denominator. It totally depends on what your question is demanding from you. So rationalization concept either can be applied on numerator section or in the denominator section or both. So it totally depends what our question is demanding from us. So in this concept, in this question, I have given a question. In this question, what do you think? We have to rationalize numerator as well as denominator, or only the numerator rationalization can be done, or only the denominator rationalization can be done. So let me complete this question for you once, and then I'll give you another question that question you have to solve by yourself. So given is limit x tends to 0, root over 1 plus x minus root over 1 minus x divided by x. We have to rationalize by root over 1 plus x plus root over 1 minus x divided by root over 1 plus x plus root over 1 minus x. Why we have rationalization? Why we have taken this step? Because by substituting directly this x tends to 0 into this question, what we are achieving is, when you substitute this, root over 1 plus 0 is 1, minus root over 1 minus 0 is also 1, divided by 0. That means 0 by 0 form, and 0 by 0 form belongs to your indeterminacy condition. And we have studied that indeterminacy conditions can be removed by using some of the formulas, in which very famous methods are there. Factorization is very famous method, rationalization is another method. So first we'll make a list and we'll go through only that list. That first method should be checked is factorization. Is factorization is possible in this method? If factorization is not possible, so we will go towards the another method. But if factorization is possible, anyhow factorization is possible, so then we only apply factorization first. तो पूरे सेक्शन में मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि बेटा जितने भी मेथड हमने पढ़े हम उनकी एक लिस्ट बनाते हैं और चेक लिस्ट को करते हैं. पहला फैक्टराइजेशन को चेक किया जाएगा, क्या फैक्टराइजेशन हो सकता है क्या इसके अंदर. फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है तब हम जाएंगे रैशनलाइजेशन पे. अगर फैक्टराइजेशन हो सकता है तो पूरा फैक्टराइजेशन पहले लगाओगे आप, उस केस में रैशनलाइजेशन की तरफ हम नहीं जाएंगे. तो इसी तरीके से हम इसको आगे बढ़ाएंगे. रैशनलाइजेशन देखो यार, यहाँ पे कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये कितना हो जाएगा आपके पास में, रूट और 1 प्लस एक्स माइनस रूट और 1 माइनस एक्स. तो a माइनस बी a प्लस बी, ये कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस में 1 माइनस एक्स, x टाइम्स ऑफ रूट ओवर 1 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स. ठीक है, x की वैल्यू 0 डाली,
तो ये x हो गया, ये प्लस x हो गया, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो x हो गया प्लस x हो गया, मतलब 2x डिवाइडेड बाय x टाइम्स ऑफ रूट ओवर 1 प्लस x प्लस रूट ओवर 1 माइनस x। बस x ने x काट दिया यार। x की वैल्यू को आपने जैसे ही 0 डाला तो 2 डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 1। आंसर कितना आ गया भाई आपके पास में 1। तो इस तरीके से अगर इस मेथड में किसी को प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क योर डाउट बाय रेजिंग योर हैंड, और इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट राइट yes or done in the chat option. Correct. So try and solve this question by yourself. Just give it a try. एक बार ट्राई करके देखो, सॉल्व करो। हुआ? ईश्वर का आंसर आ गया है 5/2। चलिए, राहुल नहीं, नया चैप्टर नहीं चल रहा है, लिमिट्स ही चल रहा है बेटा। कल स्टार्ट किया था हम लोगों ने लिमिट्स। अगर तुमने क्लास अटेंड नहीं किया था तो तुमको प्रीवियस लेक्चर देख के आना चाहिए था। चलिए, सो देखते हैं यार क्या आंसर आ रहा है। ऊपर नीचे रैशनलाइजेशन हम लोगों को करना पड़ेगा यार। x टेंड्स टू 1, तो 15x प्लस 1, इसको रैशनलाइज किया कितना आ जाएगा 4 प्लस रूट ओवर इसके बाद फोर माइनस रूट ओवर 15x प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 16 माइनस 15x माइनस प्लस में 1 डिवाइडेड बाई ये 4
रूट ओवर 15x प्लस 1। एक तो ये हो गया। ऊपर कितना हो जाएगा 2 प्लस रूट ओवर 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस रूट 3x प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, ये देखो लिमिट x टेंड्स टू 1, ये आ जाएगा 15 कॉमन 1 माइनस x डिवाइडेड बाय, ये एज इट इज चलने दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ये 15x प्लस 1 इंटू ऊपर वाला एज इट इज चलेगा 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 1। यहां पे कितना आ जाएगा आपके पास में 3 कॉमन 1 माइनस x आ जाएगा। ये 1 माइनस x ने 1 माइनस x काट दिया। लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चे। जैसे तुमने लिमिट को सब्स्टिट्यूट किया, ये कितना आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 3। 15 और 3 तो ऊपर नीचे आ जाएंगे। इनटू में आपने डाला 1 तो ये आ जाएगा 2 प्लस रूट 4, कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा 4 प्लस रूट 16 is 4, तो ये आ जाएगा 15 बाय 3 इनटू में कितना आ जाएगा आपके पास में 4 डिवाइडेड बाय 8, तो ये जाएगा 2, ये हो जाएगा 5। आंसर कितना आ जाएगा 5/2। तो जिन लोगों का 5/2 आंसर आ रहा है उन लोगों ने सही किया है, जिनका नहीं आ रहा है वो थोड़ा सा देख लीजिए यार कि कहीं आपने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, कहीं आपने कोई चीज छोड़ तो नहीं दी। 15 कॉमन नहीं हुआ बच्चे, यहां पे 15 देखो ना, 16 माइनस 1, ये माइनस 15x माइनस 1, तो 15 आ जाएगा ना ये। और ये भी कितना हो जाएगा, देखो इसको मैं थोड़ा सा ओपन कर देता हूं, यहां पे आपको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा। 16 माइनस 15x माइनस 1, तो 15 माइनस 15x, 15 कॉमन 1 माइनस x। बताओ किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है तो चैट में यस और डन लिखो, अगर है तो डाउट पूछो। नहीं बेटा उससे नहीं होगा पीयूष। क्यों हम लोगों ने रैशनलाइज किया, ऐसे ही नहीं कर दिया, देखते रैशनलाइज नहीं कर देंगे, पहले सब्स्टिट्यूट करके देखा होगा। 1 सब्स्टिट्यूट करोगे ऊपर कितना आ जाएगा 4 माइनस रूट 16 कितना आ जाएगा 4 अपॉन 2 माइनस ये भी कितना आ जाएगा 2, तो 0/0 फॉर्म बन रही होगी यार। क्या बन रहा होगा 0/0 फॉर्म बन रहा होगा। उस 0/0 फॉर्म को ऐसे सॉल्व किया जाएगा। वो डिपेंड करेगा आकृति कि क्यों रैशनलाइजेशन करना पड़ रहा है, क्योंकि 0/0 बन रही है, इनडिटर्मिनेसी हटाने के लिए दोनों को रैशनलाइज किया। आयुष पूछो। सर अगर वो 0/0 ना होकर कोई नंबर बाय 0 होता तो फिर क्या होता? नंबर बाय 0, हाँ मतलब कोई नेचुरल नंबर पकड़ लीजिए। तो फिर रिजल्ट बेटा उसका हम लोग LHL और RHL चेक करते हैं, ये रैशनलाइजेशन से नहीं सॉल्व कर सकते। अच्छा ठीक। ठीक है, हाँ सर, थैंक यू। नहीं अनीशा दोनों नहीं करेंगे जब तक 0/0 इंफिनिटी बाय इंफिनिटी या कोई इनडिटर्मिनेसी नहीं बन रही होगी, दोनों को नहीं करेंगे। पिछले में दोनों को क्यों नहीं किया, संकेत पूछो। हाँ सर, जब 0/0 फॉर्म बनेगी तभी ये मेथड यूज करेंगे ना? नहीं लड़के, जब भी कोई इनडिटर्मिनेसी बन रही होगी, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी भी बन रही होगी, तो भी अगर उसके अंदर अंडर रूट की क्वांटिटी है तो हम रैशनलाइज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, 0/0 हाँ, बाय इंफिनिटी में जनरली यूज होता है। संतृप्ता पूछो बेटा। सर आप जो बोले मतलब जैसे किसी का डाउट था तो आप बोले एक नेचुरल नंबर के नीचे अगर 0 आएगा तो उसमें LHL और RHL को इक्वल करेंगे, वो कैसे समझ नहीं आया सर? देखो उसने बोला कि सर अगर 0/0 ना बन रहा होता तो रैशनलाइजेशन करते क्या। मान लेते नीचे 0 बन रहा होता, ऊपर नहीं बन रहा होता, तो नीचे वाले को रैशनलाइज करते क्या। तो मैंने उसको बोला नहीं बेटा, रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ये नहीं कहता। रैशनलाइजेशन ये बोलता है कि इनडिटर्मिनेसी को हटाओ, तो जब तक ऊपर भी 0 नहीं है नीचे भी 0 नहीं है आप नहीं कर सकते ऐसे। तो उसने बोला सर नेचुरल नंबर ऊपर अगर आया मान लेते हैं और नीचे आया 0 तो क्या करेंगे। तब मैंने बोला कि अगर ऐसा केस होगा
उसमें 0/0 नहीं बन रहा तो हम लोग LHL RHL चेक करेंगे। मेथड जिसमें नहीं लग पा रहा तब हमको ओरिजिनल जो बेसिक डेफिनेशन है क्वांटिटी की उस पर जाना पड़ेगा, लिमिट की। ओके, यस सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलो हाँ निशा पूछो। सर मैं ये पूछ रही थी कि यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही मतलब रैशनलाइज करें क्या? हाँ इस जगह दोनों को करना पड़ रहा है क्योंकि दोनों को रैशनलाइज करने से इंडिटर्मिनेसी हट रही है। मान लेते हैं ये सेक्शन हटा देते हैं 1 मिनट के लिए, ये वाले सेक्शन को हटा देते हैं, इसको नहीं किया रैशनलाइज, इसको रैशनलाइज करते हैं तो मेरे पास क्या आ रहा होता, देखो यहाँ पे आ रहा था 16 - 15 x + 1, मतलब ये हो जाता 15 टाइम्स ऑफ 1 - x और नीचे बन जाता 4 + √15x + 1। और ऊपर आपके पास में इनटू में क्या रहता 1/2 माइनस ये वाली क्वांटिटी रहती 2 - √3x + 1। तो देखो तुम फिर से 1 डालती ना तब भी 0/0 आंसर आ रहा होता क्योंकि तुम काट तो पाई नहीं। यस सर। समझ गई? तो एक जगह रैशनलाइजेशन यहां पे जरूरी नहीं है। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक जगह रैशनलाइजेशन से काम चल गया मेरा यार, क्योंकि ऊपर ही था केवल वो, तो एक ही जगह रैशनलाइज किया मैंने ऊपर वाले को, नीचे वाले को रैशनलाइज कर ही नहीं सकता क्योंकि वो अंडर रूट में है ही नहीं समझी? यस सर। समझ आई बेटा? यस सर, थैंक यू। बताओ और किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं? तो रैशनलाइजेशन मेथड इस तरीके से चलता है यार, रैशनलाइजेशन मेथड इस तरीके से चलता है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम करने जा रहे हैं कौन सा मेथड यार, नेक्स्ट स्टैंडर्ड लिमिट्स। तो आपने 11वीं क्लास में कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स को डायरेक्टली याद किया होगा, है ना? तो उनमें से कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स यहां पे भी है हमारे पास। तो आपने पढ़ा होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, उसकी वैल्यू कितनी पड़ी होगी 1। ऐसे लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x, उसकी वैल्यू भी कितनी पड़ी होगी 1। ये tan इनवर्स x अपॉन x और sin इनवर्स x अपॉन x ये नया है क्योंकि आपने इनवर्स पढ़ लिया है, इसलिए हम बोल सकते हैं इसका आंसर भी 1 आता है। इसी तरीके से आपने पढ़ा होगा 1 + x उसकी पावर 1/x, x टेंड्स टू 0, इसका आंसर आता है e। तो अभी के लिए आप सब लोगों को ये याद करनी पड़ेंगी, ठीक है? जितनी भी टर्म्स मैं बता रहा हूं फटाफट कॉपी में लिख लो, ये सारे आपको याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है? अब इसको प्रूव करने का तरीका भी है अपने पास में, ये सिर्फ मैं उससे केवल ये दोनों को प्रूव नहीं कर सकता, बाकी मैं दोनों सबको प्रूव कर सकता हूं। तो चलिए एक बार प्रूव करने का तरीका भी देख लेते हैं। मैं यहीं पे एक नया मेथड पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, लॉपिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल या लॉपिटल रूल भी बोलते हैं इसको। तो लॉपिटल रूल क्या बोलता है यार, ये बोलता है जैसे पहला टर्म उठाते हैं, लिमिट चल रहा है x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, इसका आंसर कितना आएगा बेटा 1। तो sin x अपॉन x आंसर आएगा 1। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x, अब तुमने 0 डाला ना तो ये ऊपर बन गया 0, नीचे भी बन गया 0। तो लॉपिटल रूल कहां पे लगेगा, जब भी आप लिमिट को सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास 0/0 या ∞/∞ अगर आ रहा होगा तो लॉपिटल रूल लग जाएगा। फिर से सुन लो, जब भी आप 0 को सब्स्टिट्यूट करोगे किसी भी एक्सप्रेशन में तो 0/0 ∞/∞ इस तरीके की फॉर्म, अगर 0/0 और ∞/∞ दो ही फॉर्म रहती है, अगर ये बन रहा होगा तो हम बोल देंगे कि हाँ हम इसमें लॉपिटल रूल लगा सकते हैं। अब लॉपिटल रूल कहता क्या है, वो ये कहता है कि बेटा ऊपर वाला न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में डिफरेंशिएट कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट कर दो। अब आप बोलोगे सर डिफरेंशिएशन, तो मैं बोलूंगा हाँ बेटा आपने डिफरेंशिएशन थोड़ा सा 11वीं क्लास में पढ़ा है ना, उतना ही यूज होएगा यहाँ पे। तो sin x जो है ऊपर वाला उसको ऊपर ही डिफरेंशिएट कर दिया, कितना आ गया cos x अपॉन नीचे वाला x जो है उसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, आ गया 1। गलती से भी इसमें डिवीजन रूल या क्वोशंट रूल नहीं लगाना है, गलती से भी डिवीजन रूल नहीं लगाना डिफरेंशिएशन का कि भैया आपने पूरी टर्म को डिफरेंशिएट कर दिया, गलती से भी ये नहीं करना। sin x अपॉन x आपने पूरी टर्म को डिफरेंशिएट कर दिया, ये गलती से भी नहीं करना है।
आपको ऊपर वाली टर्म को ऊपर डिफरेंशिएट करना है, नीचे वाली टर्म को नीचे डिफरेंशिएट करना है। अब आपने जीरो सब्सटीट्यूट किया तो cos जीरो की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो लॉपिटल रूल क्या कहता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, x की वैल्यू आपने 0 डाला तो sin 0 0 हो गया, अपॉन में 0 आ गया, 0 बाय 0 बन गया। बस ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट कर दो, cos x नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट कर दो, 1 आ गया। तो cos x की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 1। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x कितना आंसर दे रहा है आपको 1 देता है। वो हम लोगों ने किससे प्रूव किया, लॉपिटल का यूज करके। तो tan x अपॉन x भी करके देख लेते हैं यार, tan x अपॉन x भी करके देख लेते हैं। तो tan x अपॉन x कितना हो जाएगा बेटा, फिर से देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x कितना आ रहा है, 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है, 0 बाय 0 बन रही है, लॉपिटल लगा सकते हो। ऊपर वाले का ऊपर डिफरेंशिएशन कितना आ गया, सीकेंड स्क्वायर x, x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1। तो लिमिट x टू 0, ये कितना आंसर दे देगा आपको 1। इसका भी आंसर कितना आ रहा है 1। तो इस तरीके से लॉपिटल रूल 0 बाय 0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के केसेस में लगाया जा सकता है, ठीक है। और जैसे ही आप देख रहे हो ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट करो, नीचे वाले को नीचे, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें भी देखो आ जाएगा। चलिए तो हम आगे काम करते हैं किसको प्रूफ करने के लिए। देखो इनवर्स का डिफरेंशिएशन आप लोगों को नहीं पता होगा, तो इनवर्स वाला डिफरेंशिएशन हम लोग अभी नहीं देख रहे हैं। जब इनवर्स का डिफरेंशिएशन सीख लेंगे तब इसको यूज कर सकते हैं। तो ये वाला अभी के लिए आपको याद ही करना पड़ेगा, ये वाला याद करना पड़ेगा। ये मैंने प्रूव करके दिखाया, और भी मुझे इसके प्रूफ आते हैं। इसका ग्राफिकल प्रूफ भी आता है मेरे को, इसका एक और तरीके का प्रूफ भी होता है एनालिटिकल, वो भी आता है मेरे को। तो वो चीजें नहीं देख रहे हम, लॉपिटल से देख लिया। इन दोनों ये जो 4 एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं यहाँ पे, इनको भी आपको याद ही करना पड़ेगा। क्या एक्सप्रेशन है थोड़ा ध्यान से देख लो। ये क्या है, 1 प्लस एक्स उसकी पावर 1 बाय एक्स, एक्स टेंड्स टू 0, ये आंसर देता है ई, ठीक है। 1 प्लस एक्स इसकी पावर 1 बाय एक्स आंसर देता है ई। ये क्या आंसर देता है, 1 प्लस एक्स इसकी पावर 1 बाय एक्स। तो यहाँ एक्स के सामने कितना लिखा हुआ है 1, तो ई की पावर 1। यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो ई की पावर ए, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो ई की पावर 1, यहाँ पे ए लिखा है तो ई की पावर ए, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला प्रोसेस जो है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाय एक्स उसकी पावर एक्स, यहां आंसर आ रहा है ई। और यहां पे देखो ये 1 की जगह पे ए आया तो आंसर आ गया ई की पावर ए। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला भी आपको याद ही करना पड़ेगा। बाकी जो 4 हैं इनको हम एक एक करके प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर वाले आपको याद करने ही पड़ेंगे, बाकी बचे हुए हम एक एक करके प्रूफ करते हैं। तो पहला हम प्रूफ कर रहे हैं कौन सा यार, ये 5th वाला, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x। आपको 11वीं क्लास में बता दिया होगा, इसका आंसर आता है 1। तो आप जरा देखो इसमें क्या लॉपिटल रूल लग सकता है, क्या क्या एल हॉस्पिटल रूल इसमें लग सकता है क्या, सब लोग जरा चेक करके बताओ। नहीं, सिर्फ 0 बाय 0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आएगा, उसी में लगा सकते हैं। जिसने क्वेश्चन पूछा था कि सारे इनडिटर्मिनेसी में लगा सकते हैं क्या, बाकी जो बोल रहा है यस उसका आंसर सही है। तो यहां पे 0 डाला तो कितना आ गया, e की पावर 0 इज 1 माइनस 1 अपॉन 0, मतलब 0 बाय 0 हो गया यार ये। तो बस इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन e की पावर x, 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1, e की पावर 0 डालेंगे कितना आ जाएगा 1 अपॉन 1, आंसर आ गया 1। बताओ समझ आया। समझ आया। चलो नेक्स्ट 6th, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x।
ए की पावर x माइनस 1 अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0। इसका बताओ क्या इसमें लॉपिटल रूल लगाया जा सकता है? e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है बच्चे। जिसको ये नहीं पता वो ये डिफरेंशिएशन याद रखे। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, और e की पावर 0 आपको आंसर देता है 1। चलिए a की पावर x का डिफरेंशिएशन यहां पे लिख रहा हूं मैं, डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x आंसर देता है a की पावर x ln a। a की पावर x डिफरेंशिएशन देता है a की पावर x ln a। a की पावर x ln a। तो बस जिसने भी बोला देखो e की पावर 0 1 आया, ऐसे ही a की पावर 0 पे कितना आ जाएगा बेटा 1, तो 1 माइनस 1 अपॉन 0 मतलब 0/0 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, a की पावर x हो जाएगा a की पावर x ln a। 1 का कितना हो जाएगा 0, x का कितना हो जाएगा 1, इसको 0 डाला तो a की पावर 0 कितना हो गया 1 ln a अपॉन में कितना हो गया 1, आंसर आ गया ln a। ln मतलब नेचुरल लॉग, तो देखो आंसर आया हुआ है, log a बेस e को ln a बोला जाता है, आंसर आया हुआ है। अगला वाला देखो, इसको करो। सूर्य कैसे लिखना चाहते हो? a की पावर x को कैसे लिखना चाहते हो? सूर्य अनम्यूट करो अपने, मतलब हैंड रेस करो लड़के, बाकी लोग इसको ट्राई करो। हाँ सूर्य बोलो। सर जैसे a की पावर x लिखा है तो हम x को आगे लेकर x से नहीं लिख सकते? नहीं बच्चे, वो जो तुम डिफरेंशिएशन बता रही हो ना वो x की पावर n का है, और उसमें n कांस्टेंट होता है, x वेरिएबल। यहाँ पे उल्टा है, ये a कांस्टेंट रहेगा, x वेरिएबल रहेगा। सर वेरिएबल को ऐसे नहीं कर सकते, सिर्फ वेरिएबल को ऐसे नहीं कर सकते बच्चे। ओके थैंक यू सर। डिफरेंशिएशन अपन काफी सीखेंगे है ना, ओके ठीक है। हाँ भाई चेक करो इसको, क्या ये 0/0 बन रहा है? तो इसमें मुझे लगता है कि आप लोगों को दिक्कत होगी, तो मैं यहां सामने बता देता हूं कुछ चीजें। ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, आपने 0 डाला तो ऊपर आएगा ln 1 जिसकी वैल्यू होती है 0 अपॉन 0, तो आंसर आ गया 0/0। ln 1 हो गया 0/0। चलो दूसरा देखते हैं, अब 0/0 बन गया। अब ln का डिफरेंशिएशन देख लो बेटा, log ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, मतलब जो भी अंदर होता है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा, तो एल हॉस्पिटल रूल से x टेंड्स टू 0, इसका डिफरेंशिएशन किया, ऊपर वाले का ऊपर करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स, एक्स का 1, x की वैल्यू को 0 डाला तो 1/1, आंसर कितना आ गया 1। आंसर कितना आ गया 1। बताइए समझ आया? लास्ट सेक्शन देखते हैं ये वाला।
ये वाला लास्ट वाला सेक्शन देखो बेटा, आपने सब्स्टिट्यूट किया a, तो यहां पे कितना बना, इसके केस में कितना बना, a की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन a माइनस a, तो ये बन गया 0/0। ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, x की पावर n इज n x की पावर n माइनस 1, a की पावर n हो जाएगा 0 अपॉन x का कितना हो जाएगा 1, a सब और 1 का ये a का कितना हो जाएगा 0। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। a की पावर n कांस्टेंट है क्योंकि इसमें n भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ऊपर में कैसे लगाया मैंने, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n माइनस 1, a की पावर n का 0, ऐसे नीचे वाले में x का डिफरेंशिएशन 1, a का 0, तो a सब्स्टिट्यूट किया n a की पावर n माइनस 1। n a की पावर n माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने पूरा देख लिया है ये वाला स्लाइड। तो इसमें ध्यान से देखो, एल हॉस्पिटल तो मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया यहीं पे ही, लेकिन ये जो स्टैंडर्ड लिमिट्स है ना बेटा, ये आपको ये याद करनी पड़ेंगी एकदम, ठीक है। तो अभी के लिए याद कर लो, ये जो चार चीजें हैं, ये चार रिजल्ट्स हैं, ये वाले, ये 1 की पावर इंफिनिटी को बिलोंग करने वाले रिजल्ट्स हैं। तो 1 की पावर इंफिनिटी इनडिटर्मिनेसी जो है, उसे हम एल हॉस्पिटल से नहीं सॉल्व कर सकते, हम सिर्फ 0/0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी को ही सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे आने वाली क्लासेस में जब हम 1 की पावर इंफिनिटी को देखेंगे, शायद कल, तब मैं इनका प्रूफ बता पाऊंगा। चलो, इसी के बेस्ड E एक फिक्स क्वांटिटी होती है, एक्सपोनेंशियल के लिए यूज होता है, और E की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 2.71। E जो होता है उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 2.71। E की वैल्यू होती है 2.71। प्रियांशी, अभी सैंडविच बहुत दूर है, उसको क्यों टेंशन ले रही हो? हाँ बताओ प्रांजल, लास्ट स्लाइड में क्या? प्रज्वल, प्रांजल नहीं, प्रज्वल, बताओ इस स्लाइड में क्या है लास्ट में? राधिका, इंफिनिटी वाला अभी आएगा कॉन्सेप्ट, आपको टेंशन नहीं लेना है अभी उसका, अभी याद रखना है बस, अभी कोई टेंशन नहीं लेना है, अभी बस याद रखना है। ये 6th का है, बताओ। ये 6th वाला है, बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, x टेंड्स टू a है बेटा प्रज्वल, तो हम क्या करते हैं, x टेंड्स टू a में आपने सब्स्टिट्यूट किया, a की पावर n आ जाएगा x की जगह, जहां जहां x है, तो a की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन a माइनस a, तो 0/0 बन जाता है। तो 0/0 है, इसका मतलब आप लगा सकते हैं इसमें एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है बच्चे, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है अपने को, ट्राई करो जरा। ये क्वेश्चन को दोनों तरीके से देखेंगे, एक तो स्टैंडर्ड लिमिट लग सकती है या नहीं लग सकती है, दूसरा एल हॉस्पिटल लग सकता है या नहीं लग सकता है, दोनों से सॉल्व करेंगे इसको, जल्दी करो।
हो गया। चलो भाई, बढ़िया। चलो दो मेथड देखते हैं। पहला मेथड देखते हैं, एल हॉस्पिटल रूल, फर्स्ट मेथड। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो चल रहा है, मैंने जीरो डाला तो 1 की पावर n माइनस 1 अपॉन जीरो, तो 1 माइनस 1 अपॉन जीरो, आंसर आ जाएगा 0.0। ठीक है, तो लिमिट चल रहा है x टेंड्स टू जीरो, ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट कर दो, n टाइम्स ऑफ 1 प्लस x, इसकी पावर आ जाएगा n माइनस 1, 1 का हो जाएगा 0 अपॉन x का कितना हो जाएगा 1, 0 सब्सटीट्यूट किया तो n टाइम्स ऑफ 1 प्लस 0, उसकी पावर कितना हो जाएगा n माइनस 1, मतलब आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में n। एक लाइन का क्वेश्चन, n आंसर। ठीक है, n की पावर n माइनस 1 नहीं स्नेहल, क्योंकि x टेंड्स टू क्या चल रहा है 0, तो यहां पे क्या चला जाएगा 0, तो n टाइम्स ऑफ 1 प्लस 0, उसकी पावर n माइनस 1, 1 की पावर n माइनस 1 कितना आ जाएगा 1। ठीक है, सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड देखो जरा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखो। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1, या सिर्फ x था उसमें प्लस 1 कर दो और माइनस 1 कर दो। 1 प्लस एक्स को एक नई चीज ले लेते हैं, क्या, h ले लेते हैं, ये हमने सब्सटीट्यूट किया है। तो अगर x इसको अप्रोच करेगा 0 को, तो 0 मैंने यहां पे डाला, तो 1 प्लस 0 कितना आ जाएगा 1, तो h आपको किसको अप्रोच करने लगेगा 1 को। x अप्रोच करेगा 0 को तो h अप्रोच करेगा 1 को। तो यहां पे ये आप क्या लिख सकते हो, लिमिट ही बदल गई है। x 0 को अप्रोच कर रहा था, h किसको अप्रोच कर रहा था 1 को, तो ये आ जाएगा कितना, h की पावर n माइनस 1 की पावर n अपॉन h माइनस 1। बस ये तो बिल्कुल वही हो गया, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस 1, उसका आंसर कितना आता था n a की पावर n माइनस 1, तो 1 की पावर n माइनस 1, आंसर आ गया n। या फिर आप यहां पे भी एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। बताइए, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए। आरएस बताते हैं लास्ट स्टेप। सौम्य पूछो बेटा। हाँ सर। सर वो पूछो सेकंड सौम्य। मेथड थोड़ा क्या सेकंड मेथड थोड़ा समझा दीजिए। सेकेंड मेथड में मैंने कुछ नहीं किया, 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 लिखा हुआ था, ऊपर नीचे था x, तो 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये तो मैं कर सकता हूं, यस सर। है ना। 1 प्लस एक्स को मैंने नया नंबर ले लिया, क्या ले लिया h, तो अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो 1 प्लस 0 कितना आ जाएगा 1, तो h किसको जाने लगेगा 1 को जाने लगेगा, यस सर। है ना। तो x टेंड्स टू 0 की जगह आ जाएगा h टेंड्स टू 0, ये कितना आ जाएगा h की पावर n माइनस 1 की पावर n लिखी जा सकती है
अपॉन h माइनस 1 लिखा जा सकता है। बस, तो ये कौन सी फॉर्म को बिलोंग कर गया? ये इसको बिलोंग करने लगा। x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, x टेंड्स टू a है, तो आंसर आता है n a की पावर n माइनस 1, है ना? यस सर। तो बस मैंने वही अप्लाई कर दिया यहाँ पे, h की पावर n माइनस 1 की पावर n अपॉन h माइनस 1, तो आंसर आएगा n 1 की पावर n माइनस 1। यस सर। ठीक है, आंसर आ गया n 1 की पावर n माइनस 1 कितना होता है? n। हाँ। SR या RS, तुम्हारा जो RS लास्ट स्टेप यही था बेटा। हाँ, बोर्ड में आप लोग एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं कर सकते। जयेंद्र, 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया गया है। 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया गया है। क्योंकि बोर्ड ने मना किया आर्ची, इसलिए नहीं अप्लाई कर सकते। बोर्ड ने कहीं सिलेबस में लिखा नहीं है। एक्चुअली क्या है, पूरी एनसीईआरटी में एल हॉस्पिटल रूल नाम का कोई टॉपिक नहीं है, इसलिए वो लोग जो चीज एनसीईआरटी में लिखी नहीं होती वो चीज अप्लाई नहीं करते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यार। अब जो आपने पढ़ा था ना उसी को थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा गया है। यहाँ पे क्या लिखा गया, ध्यान से देखो। आपने पढ़ा था लिमिट x टेंड्स टू 0, एक एक करके लेते हैं, है ना? ऐसे अलग अलग स्लाइड्स बना लेंगे, तो एक एक करके लेते हैं। मैं क्या कर रहा हूं ये, सबसे पहले इस पे आ जाते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, इसका आंसर कितना आता है? 1। क्यों 1 आता है? क्योंकि x की वैल्यू 0 डालने पे आपके पास बन क्या रहा है? साइन 0 अपॉन 0, ये आंसर 1 को जा रहा है। तो अब इसकी तरफ ध्यान देते हैं कि ये नया क्या लिख दिया यार इसने। ये नया इसने लिखा है, देखो यहां पे क्या, कि अगर x टेंड्स टू a करने पे, x को a को अप्रोच कराने पे जो मेरा fx है, अगर उसका आंसर आ रहा है 0, ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू a साइन fx अपॉन fx, मतलब a डालेंगे fx की जगह तो आ जाएगा साइन 0 अपॉन 0, मतलब साइन 0 अपॉन 0 कितना आता है बेटा? 1। साइन 0 अपॉन 0 कितना आ रहा था? 1। तो साइन 0 अपॉन 0 कितना आ जाएगा? 1। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आई या नहीं आई? x टेंड्स टू a fx 0, तो लिमिट x टेंड्स टू a साइन fx अपॉन fx, साइन 0 अपॉन 0 कितना आया? 1। क्या आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? जिसको नहीं आई, मयूर, वो ध्यान से देखो बेटा। आप साइन x अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x को लिखते हो 1। क्यों लिखते हो? क्योंकि जब आप x की वैल्यू 0 डालते हो ना, तो साइन 0 अपॉन 0 बनता है, साइन 0 अपॉन 0 का आंसर आता है 1 की तरफ। तो हमने क्या बोला? x टेंड्स टू a fx। अब x की जगह पे कोई fx डालूंगा मैं, लेकिन a अगर x अप्रोच करेगा fx में तो आंसर आएगा 0। तो लिमिट x टेंड्स टू a साइन fx अपॉन fx, मतलब साइन 0 अपॉन 0, आंसर कितना देगा? 1। साइन 0 अपॉन 0 आंसर कितना देगा? 1। ठीक है, मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन 0 अपॉन 0 आंसर कितना दे रहा है? 1 दे रहा है, तो लिमिट x टेंड्स टू a साइन fx अपॉन fx कितना आंसर देना चाहिए? 1। क्योंकि इसमें भी तो साइन 0 अपॉन 0 बना बच्चे, है ना? उसी का आंसर 1 होता है। ठीक है, एग्जाम्पल उठाते हैं, एग्जाम्पल से आपको काफी क्लियर हो जाएगा, और एल हॉस्पिटल रूल भी लगा के देख लेंगे हम लोग। क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x का स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर। जो अंदर फंक्शन है ना, एग्जैक्टली सेम फंक्शन नीचे होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो हमने क्या बोला? ये क्या बना रहा है? साइन 0 बाय 0, इसका आंसर आ जाएगा 1। चलो चेक कर लेते हैं यार।
हमने डाला साइन 0 अपॉन 0, तो 0/0 फॉर्म बन गई, तो एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया। बताओ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर। आपने वहां पे पढ़ा था चेन रूल। चेन रूल का मतलब होता था जो बाहर वाला फंक्शन है पहले उसका डिफरेंशिएशन, फिर अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ गया 2x अपॉन नीचे कितना बन रहा है, नीचे वाले का तो सीधा हो जाएगा 2x, x ने x काटा, 2 ने 2 काटा, लिमिट चल रहा है x टेंड्स टू 0, तो cos 0 इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो देखो आंसर कितना आ गया 1, भाई cos 0 1 होता है ना, और यहां से भी हमने आंसर कितना बोला था 1। तो मतलब ये हुआ कि जो अंदर वाला फंक्शन और जो नीचे डिवीजन में फंक्शन आ रहा है साइन के, अगर वो सेम रहेगा और वो 0 की तरफ जा रहा होगा तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। इतनी सी बात आपको दिमाग में रखनी है, इतनी सी बात आपको दिमाग में रखनी है। बताइए किसी को कोई दिक्कत बची इसमें? अब किसी को दिक्कत है तो बता दो, नहीं है तो बताओ यस और डन लिख दो भाई। अगर किसी को नहीं दिक्कत है तो, और दिक्कत है तो आप यस और डन लिख दो, दिक्कत नहीं है तो, और दिक्कत है तो आप लोग हैंड रेज करके डाउट पूछ लो। रिपीटेशन सिर्फ इतना ही है। एक और क्वेश्चन दे देता हूं संकेत, उससे तुमको समझ आ जाएगा, रिपीटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। मयूर बताओ। सर वो ऊपर x टेंड्स टू a और नीचे x टेंड्स टू 0 लिया है आपने। कहां 0 लिया है? ये नीचे वाला। अरे तो वो तो इसलिए लिया ना, a की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 कुछ भी हो सकता है ना। तो a इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि fx की जगह पे कितना है x स्क्वायर, और a की जगह पे कितना है 0। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx मतलब x स्क्वायर, इसका आंसर 0 आ रहा है या नहीं? इंपॉर्टेंट पार्ट बस इतना ही है। अगला क्वेश्चन दे देता हूं मैं, तो मेरा क्या, मैं बोल देता हूं अगले क्वेश्चन में मयूर ऐसे, x टेंड्स टू 1 sin x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अब सही है मयूर? लड़के कहां चले गए? एकदम से अनम्यूट, मतलब म्यूट करने का क्या टेंशन रहता है आपको? नहीं आएगा आदित्य, आएगा तो ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, चलिए सब लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। जिसको कंफ्यूजन है कि सर आपने नीचे तो x टेंड्स टू 0 ले लिया, ऊपर x टेंड्स टू a चल रहा था, तो ये कंफ्यूजन यहां पे खत्म होना चाहिए। सॉल्व करके दिखाइए, इसका आंसर निकालिए। चलिए तो देखो बेटा, सीधा चेक करो, 1 डाला अंदर तो साइन 0 बन गया, अपॉन नीचे भी 0 बन गया, आंसर दे दो सीधा 1। साइन 0/0 आंसर होता है 1। ठीक है, याद रखना सेम फंक्शन आना चाहिए। सेम फंक्शन नहीं आएगा तो क्या डिफरेंस आएगा वो मैं समझाऊंगा आपको। एल हॉस्पिटल से भी कर सकते हैं इसको। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा, अंदर वाला एज इट इज, चेन रूल लगा, अंदर वाले में एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन नीचे में एक्स का डिफरेंशिएशन 1, लिमिट चल रहा है x टेंड्स टू 1, 1 डालेंगे तो कॉस कितना हो जाएगा 0, कॉस 0 आपका आंसर दे देगा 1। कॉस 0 कितना आंसर दे देगा 1।
हाँ चारुलता, बाय फॉर्मूला देयर आर नो स्टेप्स टू सॉल्व, करेक्ट। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करके दिखाइए मुझे। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x अपॉन x, कितना आंसर देगा? sin 2x अपॉन x कितना आंसर देगा? बढ़िया, मैंने आपको पहले ही बोला था बच्चे, जो अंदर फंक्शन है सेम फंक्शन नीचे होना चाहिए। कुछ लोगों का मुझसे क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर साइन 0 अपॉन 0 तो अभी भी बन रहा है, तो इसका आंसर 1 आना चाहिए क्या? तो मैं बोलूंगा नहीं बेटा, जब तक ये सेम फंक्शन नहीं बना देगा इसका आंसर 1 आएगा। और 1 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 2। 1 आंसर गलत है। कैसे निकाल सकता हूं? देखो, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देता हूं यहां पे। 0/0 तो बन ही रहा है ना, तो एल हॉस्पिटल लगाया। साइन 2x का, साइन का कितना हो जाएगा? cos 2x, और 2x का कितना हो जाएगा? 2, x का डिफरेंशिएशन 1, x की वैल्यू को 0 डाला, cos 0 इंटू 2 अपॉन 1, तो 2 इंटू 1 अपॉन 1, आंसर कितना आ जाएगा? 2। आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 2। तो इस वजह से देखो, इसलिए मेरे को सेम फंक्शन करना पड़ता है नीचे, अदरवाइज दूसरे मेथड में गड़बड़ आएगा। यहां 2 दे रहा होगा और ये आंसर 1 दे रहा होगा, तो इसलिए ये गड़बड़ होता है। ठीक है, तो ये मेरे को ध्यान देना पड़ता है। चलिए, यहां तक काफी समझ में आया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x, इसका आंसर आता है cos 0, आंसर आ जाएगा 1। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू a cos fx, एंड गिवन है लिमिट x टेंड्स टू a fx जो है वो 0 आंसर दे रहा है, तो cos 0 फिर से कितना आ जाएगा? 1। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x आंसर दे रहा है 1, लिमिट x टेंड्स टू a cos fx आंसर दे रहा है 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x आंसर दे रहा है 1, लिमिट x टेंड्स टू a cos fx वो भी आंसर दे रहा है 1। बताइए, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं? आइए आगे बढ़ते हैं। हर किसी में सेम काम हुआ है। देखो, tan x अपॉन x कितना आंसर आता था? 1। तो tan fx अपॉन fx कितना आंसर आएगा? 1। लिमिट x टेंड्स टू a और fx आपका 0 को अप्रोच करना चाहिए। e की पावर x माइनस 1 अपॉन x कितना आंसर आता था? 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 पे, यहां x टेंड्स टू a पे e की पावर fx माइनस 1 अपॉन fx आंसर आएगा 1। x टेंड्स टू 0 पे a की पावर x माइनस 1 अपॉन x आता था ln a, यहां पे x टेंड्स टू a कर दिया और b की पावर fx माइनस 1 अपॉन fx किया, उसका आंसर कितना आएगा? ln b। ठीक है, ऐसे ही ln 1 प्लस x अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0, इस पे आंसर आता था 1। यहां पे x टेंड्स टू a ln 1 प्लस fx अपॉन fx आंसर दे रहा है 1। इसी तरीके से लास्ट वाला लिमिट x टेंड्स टू a 1 प्लस fx उसकी पावर fx आंसर आएगा e, क्योंकि वहां पे x टेंड्स टू 0 1 प्लस x इसकी पावर 1 अपॉन x का आंसर आता था e। ठीक है, इन्हीं चीजों को ध्यान में रखेंगे। सी वाला छोड़ दो, अभी सी वाला कोई दिक्कत नहीं है, ये हम बाद में देखेंगे। ये जो बी सेक्शन है ये पुराने सेक्शन पे डिपेंडेंट है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना पड़ रहा है।
ठीक है, इसको ध्यान देना पड़ेगा। आइए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। इसकी सब लोग कॉपी कर लीजिए फटाफट और चैट में नोटेड लिख दीजिए। नहीं पूजा, जो भी डिफरेंशिएशन में आएगा कल को cos y अपॉन वाई आ जाएगा, sin y अपॉन वाई आ जाएगा, लिमिट y टेंड्स टू 0, तो आपको y के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यार क्वेश्चन की तरफ। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए, सॉल्व कीजिए फटाक से। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 3x माइनस 1 अपॉन x बाई 2। सॉल्व करके दिखाइए। चलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 3x माइनस 1 अपॉन x बाई 2। बेटा अपने को यह ध्यान रखना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 में जो e की पावर में आ रहा है वही फंक्शन नीचे भी आए। तो x बाई 2 है, उसमें 2 तो ऊपर आ जाएगा, ये x को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। इसका आंसर यहां लिमिट लगेगी, आंसर आ जाएगा 1। 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। आंसर कितना आ जाएगा बच्चे 6। 6 देखो आंसर 6। फिर से सुन लो, e की पावर एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स होता है तो e की पावर 3x माइनस 1 अपॉन 3x रहेगा। ठीक है, तो ये आंसर आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा 6। सॉल्व करो। सॉल्व कीजिए जल्दी।
चलिए आंसर निकालिए फटाक से। हाँ भाई, चलिए देख लेते एक बार। ये इसका आंसर लिखा है, फटाफट देख लो। ये इसका आंसर लिखा हुआ है 1/2। प्रोसेस देख लो सब लोग यार। चलिए आज यहीं तक रखेंगे हम लोग।